बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, आइए इन दोनों ही महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए तालियों के साथ इन परियोजनाओं का एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच विकसित हो रही औद्योगिक साझेदारी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुबोटा कॉर्पोरेशन एंड मिंडा कॉर्पोरेशन का वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाएं इस अवसर पर। बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे माननीय डिग्निटरीज से अनुरोध करूंगी कि वे मंच आसीन हो जाएं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिंगो हानाडा, President and CEO Kubota Corporation, Japan, to kindly address the gathering and share his perspective on this important partnership. May I invite Shri Shingo Hanada, President and CEO Kubota Corporation Limited, कि वे इस निवेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी साझेदारी के अनुभव एवं भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Ladies and gentlemen, we welcome with a huge round of applause Shri Shingo Hanada, President and CEO Kubota Corporation, Japan. Shingo-san, it is over to you now. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Union Ministers, Honorable Ministers of the State of UP, His Excellency, the Governor and the Vice Governor of Yamanashi Prefecture, Chief Director General of JETRO, delegates from Japan, members of our Board of Directors, and colleagues from Escorts Kubota. Ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure to mark this significant milestone in the journey of Escorts Kubota Limited with the groundbreaking of our new manufacturing facility. I would like to express my heartfelt gratitude to the Government of India, the Government of Uttar Pradesh, CEOs of Invest UP and YEDA, and everyone whose support and cooperation have made this important milestone possible. Honorable Chief Minister, under your dynamic leadership, UP has emerged as one of India's fastest growing centers for industrial development. Our investment here reflects our long-term belief in the immense potential of Uttar Pradesh and its vision of becoming a $1 trillion economy. This milestone is significant for the entire Kubota Group. For more than 135 years, Kubota has remained committed to improving people's lives and contributing to society. Guided by our philosophy, for Earth, for life, we continue to work towards a better future for people and our planet. Our journey in India has been strengthened through our partnership with Escorts and the Nanda family, an institution that has served India for more than 8 decades and has played a pioneering role in the mechanization of Indian agriculture. Under the leadership of Mr. Nikhil Nanda, this partnership has continued to deepen with a shared ambition to build Escorts Kubota for the future. So on behalf of Kubota Corporation, I extend my sincere appreciation to all those who have made this vision possible. Arigatou gozaimasu. Dhanyabad. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आरिगातो गोजाइमास।
Thank you so much, sir, for your insightful address and for reaffirming Escorts Kubota's continued commitment to India and to Uttar Pradesh. Your words reflect the strength of a partnership built not only on investment but on shared growth, innovation and a long-term vision for the future. और देवियों सज्जनों, इसी के साथ इस महत्वपूर्ण देश में ऑटोमोटिव विनिर्माण के विस्तार के नेतृत्व से सुनेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहती हूं श्री आकाश मिंडा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, कि वे इस निवेश उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति और भविष्य में खुलने वाली नई संभावनाओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लेट्स वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, श्री आकाश मिंडा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, कतारो नागासाकी-सान, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार जेट्रो के उपस्थित सभी अतिथिगण एवं उपस्थित सभी मान्यगण, नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर आवर प्लांट टुडे इन जेडा। आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, नए अवसरों का प्रदेश है और सबसे खास तौर पर इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज बिल्डिंग नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जेवर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया है। हमें एक्सप्रेसवे मिले, फ्रेट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मिले, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्किल्ड मैन पावर और स्मार्ट टाउनशिप्स, और हाल ही में एक वर्ल्ड लीडिंग एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लीडरशिप में हमने सोच को सच होते देखा है। मैं आकाश मिंडा स्पार्क मिंडा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूं और हम एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से ज़्यादा मौजूद हैं। आज हम 9,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उत्तर प्रदेश फॉर अस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड वी आर कमिटेड टू एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस हियर एट मच लार्जर स्केल। सर, हम यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी, मोटर पार्ट्स, ईवी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर के क्षेत्रों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं। डीपर लोकलाइजेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हम जापानीज कंपनी के साथ हम काफ़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम 6 से 8,000 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं। फॉर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम जापान एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, I would like to say that this is the investment opportunity in Uttar Pradesh is extremely promising. While Japan brings in world-class technology, global quality and precision manufacturing, Uttar Pradesh offers scale, talent, infrastructure, policy support and large market and increasingly business-friendly environment. And Indian companies like ours bring local capability, customer understanding and willingness to grow. This is an opportunity we all must seize. हमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहिए और हम स्वयं भी यहाँ और बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य सिर्फ बिजनेस ग्रोथ ही नहीं बल्कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर यूपी जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को एक सफल मुहिम बनाएं और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट का एक लीडिंग डेस्टिनेशन बताएं। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिंडा जी। आपने उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन को एक निवेशक और उद्योग जगत के दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा और विशेष रूप से ये विश्वास भी व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आज न केवल इंडस्ट्री फ्रेंडली बल्कि इन्वेस्टर और बिजनेस फ्रेंडली राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मोटर पार्ट्स, ईवी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति और अधिक विस्तारित करने की आपकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से साझेदारी के उज्जवल भविष्य का संकेत है। बहुत धन्यवाद आपका। And with that, ladies and gentlemen, we've come to a very important moment in this inaugural program. देवी और सज्जनों, आज हमने उन अवसरों के बारे में जाना
जो हमें एक साथ लेकर आए हैं, उन निवेशों के बारे में सुना जो अब आकार ले रहे हैं, और उन साझेदारियों की संभावनाओं को भी देखा जो आने वाले समय में नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। लेकिन हर परिवर्तन के पीछे एक दृष्टि होती है, एक विजन होता है, एक ऐसी दृष्टि जो आकांक्षाओं को दिशा देती है और अवसरों को कार्य रूप देने का विश्वास पैदा करती है। और आज हमें उस नेतृत्व को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है जो उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को दिशा दे रही है। ऐसा नेतृत्व जिन्होंने स्पष्ट उद्देश्य, निर्णायक कदम और उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को प्रदेश की प्रगति के केंद्र में रखा है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वे इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। आपसे अनुरोध है कि सभागार को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के आज के इस उद्घाटन सत्र में यहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, इंफॉर्मेशन, मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ नागासाकी मिस्टर काटोरो नागासाकी, वाइस गवर्नर यामानासी, उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, जेट्रो के चेयरमैन एंड सीजीएम, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, जापान के नागासाकी से आए हुए सभी हमारे इस डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। यह पार्टनरशिप, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर,
इन्वेस्टमेंट और शेयर्ड विजन के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर निर्मित है। मैं इस अवसर पर यामानासी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा यामानासी और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और जापान के अग्रणी उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के सीएमडी श्री निखिल नंदा, होंडा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री जोशी मोराकामी, डेंसो इंटरनेशनल इंडिया के श्री संजय भार्गव, एसएफ 1 टाटा समूह के सीईओ श्री दीपक मुंगलाहल्ली, तामिंडा कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री आकाश मिंडा जैसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर की उपस्थिति इस इन्वेस्टमेंट मीट को और भी गरिमामयी बना रही है। ऑटोमोबाइल एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में का उनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश जापान आर्थिक साझेदारी को निरंतर बढ़ती व्यापकता और विविधता को रेखांकित करता है। मित्रों, भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, रेल, वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। EI, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के केंद्र के रूप में रहा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और श्रीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम
एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, आर&डी, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। हम मार्च 2026 में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना लेकर के आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो, एमआरओ और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश 3.0 लॉन्च किया गया। यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को एक साथ लाकर एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग करता है और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के द्वारा हम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पूरा कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने निर्धारित समय से पहले पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एस्टिमेट से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर आईबीएम इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप ईवी बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसमें काइजेन, 5S, लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे जापानी औद्योगिक उत्कृष्टता की तकनीकों को युवाओं के प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और यामानासी के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर केंद्रित रही है। आईआईटी कानपुर, एचबीटीयू कानपुर, आईआईटी बीएचयू, MMUT गोरखपुर के मध्य में